નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો નવસારી લાઈવ। આજે દેશમાં 14 મહિના બાદ ત્રણેય નવા કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચાયા છે। જી હા, સરકાર દ્વારા 3 કૃષિ કાયદા લવાયા બાદ ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હતો અને જેમાં ઘણા ખેડૂતો શહીદ પણ થયા હતા। ત્યારે આજ રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ ત્રણેય કૃષિ કાયદાને રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે। ત્યારે તમને જણાવી દઈએ કે 17 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ લોકસભા દ્વારા 3 નવા કૃષિ કાયદાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી। ત્યારે રાષ્ટ્રપતિએ ત્રણેય કાયદાના પ્રસ્તાવ પર 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ હસ્તાક્ષર કર્યા હતા। ત્યારથી ખેડૂતોના સંગઠનો દ્વારા કૃષિ કાયદા સામે આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આ 3 કાયદા આ પ્રમાણે છે, જેમાં પહેલું ખેડૂત ઉત્પાદન વેપાર અને વાણિજ્ય સંવર્ધન અને સરળીકરણ બિલ 2020, બીજું ખેડૂતોને સશક્તિકરણ સંરક્ષણ કિંમત ખાતરી અને કૃષિ સેવાઓ પર કરાર બિલ 2020 તેમજ ત્રીજું આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ સંશોધન બિલ 2020। ત્યારે 427 દિવસ અને 700 ખેડૂતોના મોત પછી સરકારે નમતું જોખ્યું છે। જી હા, કૃષિ કાયદાના 427 દિવસ પછી અને તેના વિરોધમાં દેખાવો દરમિયાન 700 થી વધારે ખેડૂતોના મોત પછી સરકારે આ કાયદાને પરત લેવાની જાહેરાત કરી છે। ત્યારે આ ત્રણેય કૃષિ કાયદાને રદ કરવાની જાહેરાત કરાતા જ નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા નવસારી એપીએમસી ખાતે ફટાકડા ફોડી અને મીઠાઈ વહેંચીને ખેડૂતોની જીતની ઉજવણી કરાઈ હતી। ત્યારે સાથે જ ખેડૂતોના આંદોલનમાં જે ખેડૂતો શહીદ થયા છે અને તેમના પરિવારને પણ ન્યાય આપે અને રાકેશ ટિકિટને પણ અંત સુધી લડવા માટે અભિનંદન આપ્યા હતા। ત્યારે આ પ્રસંગે નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ શૈલેષભાઈ પટેલ, નવસારી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ નીરવ નાયક, એડી પટેલ સહિત કોંગ્રેસી કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે આ ઉજવણી દરમિયાન જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શૈલેષભાઈ પટેલ શું જણાવી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। આજે જે 3 કૃષિ કાયદાઓ ફરી પાછા સરકારે ખેંચી લીધા છે એ બદલ અમે સૌ ગુજરાતના ખેડૂતો, નવસારી જિલ્લાના ખેડૂતો અને દેશના ખેડૂતોને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને એના માટે આજે અમે અહીંયા નવસારી એપીએમસી આગળ સૌ નવસારી જિલ્લાના કાર્યકરો ભેગા થઈને અમે ફટાકડા ફોડી વિજય મહોત્સવ મનાવ્યો હતો। સાથે સાથે અમે સરકાર પાસે એવી માંગણી કરીએ છીએ કે જે ખેડૂતો આ આંદોલનમાં શહીદ થયા છે એમને પણ ન્યાય મળવો જોઈએ અને રાકેશ ટિકટ કે જેમણે આ ખેડૂતના આંદોલનની અગવાઈ લીધી હતી એમને અમે અહીં મળ્યા હતા બારડોલીમાં। એમણે કહ્યું હતું કે અમારી 3 વર્ષ સુધીની તૈયારી છે, જો સરકાર અમને ન્યાય નહીં આપે તો એમને પણ અમે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને એમનો આભાર પણ માનીએ છીએ કે જગતના તાત ખેડૂતને એમણે બચાવી લીધા છે, દેશને બચાવી લીધો છે અને આ દેશને ફરી ખેડૂતોનો જે માહોલ, જે ખેડૂતોનું અર્થવ્યવસ્થા બગડી ગઈ હતી એ ફરી પાછી સુધરશે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ અને સૌને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ। જો કે મહત્વનું છે કે છેલ્લા 1 વર્ષથી ખેડૂતો દિલ્હીની બોર્ડર પર આંદોલન કરી રહ્યા હતા। ત્યારે પ્રકાશ પર્વ પર મોદીનું સંબોધન આજે સવારે 9 વાગે શરૂ થયું હતું અને આ કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન દેશના નામે આ તેમનો 11મો સંદેશ હતો। ત્યારે આ વખતે 18 મિનિટના સંબોધનમાં ખેડૂતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાયું હતું। ત્યારે દેશને સંબોધિત કરતા દેશના વડાપ્રધાન મોદી શું જણાવી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद
करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे
उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया।
मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को
और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। અહીં તમને જણાવી દઈએ કે નવા કૃષિ કાયદા અંગે છેલ્લા 14 મહિનાથી ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા છે, ત્યારે સરકારે રાજ્યમાં ખાટલા સભા યોજી ખેડૂતોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા તો દરેક જિલ્લામાં ખેડૂતોને જવાબદારી સોંપાઈ। તેમ છતાં ત્રણેય નવા કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ ખેડૂત સંગઠનોનું આંદોલન જારી રહ્યું। ત્યારે જે મોદી સરકાર નવા કાયદાઓ ખેડૂતોના હિતમાં દર્શાવી રહી હતી, તે હવે આજે મોદીએ તે ત્રણેય કાયદાઓને અચાનક પરત ખેંચવાની જાહેરાત કરતા શું હવે ભાજપ સરકાર આ કાયદાઓનો ગેરફાયદો જણાવશે કે કેમ? હવે તે બાબતે ખેડૂતો મૂંઝાઈ રહ્યા છે। જો કે સરકાર જે કરશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। આ સાથે આવા તમામ પ્રકારના મહત્વના સમાચાર જાણવા માટે જોતા રહો નવસારી લાઈવ।